हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी सागा क्लासेस। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। सो वी आर बैक विद ए न्यू टॉपिक। द टॉपिक इज सफिशिएंसी इकोनॉमी पॉलिसी. So this topic is very much useful for the students who are currently pursuing the undergraduations or post graduations in the environmental science, as well as those who are interested in sustainability and environmental fields. So they are also learn this topic from here. Okay, so before start the today's topic, I like to highlight our social media pages. Our Facebook page Study Saga 21 and Instagram Study underscore Saga 21. So if you feel this topic is very much useful and it is very knowledgeable, then please do like, share, and subscribe our channel and hit the bell icon for the new updates. And if you have any query related to this topic or any other topic, then please feel free to connect with us or leave a comment below. We'll get back to you shortly. Okay, so let's start. Free to Okay, so we'll start with the agenda first. What is sufficiency economy policy is? The second point is applications of sufficiency economy policy in today's era. The third one is why we need it. And the fourth one is the practical case study of sufficiency economy policy. Okay, so we'll go with one by one. So we'll start with first what is sufficiency economy policy is. Let's start. Okay. Okay, so what is sufficiency economy policy is? Sufficiency economy policy, ये जो वर्ड आया है, ये वर्ड आया है थाईलैंड के कल्चर से. So there is Thai culture. Okay, so this particular word is introduced in 1997 after Asian financial crisis. Okay, so ये जो particular sufficiency economy policy हम लोग बोल रहे हैं, that is mainly foundations for the sustainable development goal. Means हमारे every country has their sustainability development goal, right? So sustainability development goal के respectively मेरे को कुछ टूल्स चाहिए या फिर कुछ मेजर्स चाहिए हमको, जिससे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सके, राइट? कोई गोल अचीव करने के लिए हम लोग को कुछ मेजर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो सस्टेनेबिलिटी गोल अचीव करने के लिए हमको कुछ मेजर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक सफिशिएंसी इकोनॉमी पॉलिसी इज वन ऑफ देम. सफिशिएंसी इकोनॉमी पॉलिसी में क्या होता है, मेनली आपका 3 प्रिंसिपल्स रहता है एंड 2 पिलर्स है. Means 3 main principles it has and 2 main pillars, and it is basically a middle path which leads to improve the development of society and its economy. Means sufficiency economy policy is the middle path of development of society and its economy. Okay, middle. So basically क्या बोल रहा है sufficiency economy policy means, if you see this image, right side image, so there is 3 circles are there and each are interlinked. Okay, so the first circle is the moderations, the second circle is the reasonableness, and the third circle is the self immunity. 3 circles interlinked है. so मतलब sufficiency economy policy बोल रहा है कि जो भी 3 सर्कल है उसका मिडिल पाथ चुनो. मींस मॉडरेशन मींस प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग विद इन वंस कैपेसिटी. जो मैंने बोला अभी जस्ट कुछ मिनट पहले कि आपको जितना जरूरत है, जितना आप कंज्यूम करना चाहते हो उतना ही प्रोड्यूस करो. दैट कम्स अंडर द मॉडरेशन. द सेकेंड वन इज द रीजनेबलनेस. रीजनेबलनेस क्या बोल रहा है आपको, यूजिंग वंस मेंटल फैकल्टीज to examine the causes. Means आपको कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, उस प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में मेंटल इश्यूज क्या है वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज कोई भी इश्यूज क्रिएट होता है तो उसका बेस कॉजेज रहता है. उस कॉजेज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना इजी रहता है. सो जो बेसिक कॉजेज है वो फाइंड आउट करने बोल रहा है. दैट इज कम्स अंडर द रीजनेबलनेस. एंड द थर्ड वन इज सेल्फ इम्यूनिटी. सेल्फ इम्यूनिटी क्या हो गया आपका, सेल्फ इम्यूनिटी हो गया कोई भी फ्यूचर पे आपका कुछ रिस्क है, कुछ इश्यूज है, उसको आगे से पहले से ही उसमें हम लोग अवेयर रहे. मीन्स बोल रहा है इट रेफर्स टू रिस्क मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इम्पैक्ट्स फ्रॉम एनी डिसरप्शंस इन फ्यूचर. मीन्स कोई भी फ्यूचर पे डिसरप्शंस आए, कोई भी फ्यूचर पे इश्यूज आए,
उसको पहले से ही हम लोग समझ के उसके लिए रेडी रहने का प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इम्यूनिटी. सो दिस थ्री आर द मेन पिलर्स बिहाइंड द सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी. सो कोई भी कंट्री जब भी कोई पॉलिसी डिजाइन करते हैं फॉर द इकोनॉमी, फॉर द benefit of the society, for benefit of the community, they have to focus on the sufficiency economic policy. So basically researchers are continuously doing research in that particular field. Researcher scientist क्या बोल रहे हैं, social philosophers बोलना चाहते हैं कि इकोनॉमी डेवलप करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए हमको ये तीन प्रिंसिपल्स पॉइंट पे माइंड पे रख के हम लोग को पॉलिसी डिजाइन करना चाहिए. तो कोई भी पॉलिसी मेकर्स दे शुड लर्न, दे शुड अंडरस्टैंड सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी क्लियरली so that they can introduce the new measures which leads to meet the sustainability target. Okay, so the two pillars क्या क्या है, a knowledge and ethics and values. जो मैंने बोला अभी 2 मिनट पहले कि कोई भी मेजर्स मेरे को लेने के पहले हम लोग को नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब नॉलेज रहेगा तब जाके एथिक्स एंड वैल्यूज क्रिएट होगा. सो नॉलेज एंड एथिक्स एंड वैल्यूज टू आर द टू पिलर्स in this particular sufficiency economic policy. So three principles क्या हो गया मेरा, moderation, reasonableness and self immunity, and two pillars क्या, knowledge and ethics and values. Okay, going to the next point. Okay, so we'll see the applications of sufficiency economic policy in modern era. Okay, so let's start. So sufficiency economic policy's biggest application is the agriculture sector. So आपका जो भी सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड एप्लीकेशंस है उसका सबसे सक्सेसफुल एप्लीकेशंस देखा गया है एग्रीकल्चर सेक्टर. सो थाईलैंड जो इकोनॉमी रिफॉर्मेशन प्रोग्राम है उस पे सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट फेंका है. मींस थाईलैंड हैज टेकन द सो मच ऑफ प्रोसेस स्टेप्स रिगार्डिंग द सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी. एंड उसके अलावा उन लोग ने जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर रिलेटेड रिफॉर्म्स है, उसमें सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से एप्लीकेशन किया है. तो उसमें से एक एप्लीकेशन है न्यू थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर. उस पे क्या है, न्यू थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर पे आपका जो लैंड है वो लैंड को दे डिवाइडेड इन वेरियस सेक्टर्स. मींस सपोज आपको जो भी क्रॉप्स चाहिए, सपोज 5% क्रॉप आपको चाहिए, सपोज ईयरली बेसिस पे आपको 5 केजी गेहूं चाहिए, तो उसको 5 केजी का ही प्रोड्यूस करो. मतलब ऐसा नहीं है कि जितना भी कंज्यूम करना है उतना ही प्रोडक्शन करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. ओके, दैट्स कम्स अंडर द न्यू थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर. सो सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी, दिस अप्रोच ग्रेटली हेल्प इन इंश्योरिंग सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर ऑल हाउसहोल्ड्स. मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी हाउस होल्ड है जिन लोग अभी हमारे आप सोसाइटी पे देखोगे कि एक हाउस होल्ड को जो लोग गरीब है, जो लोग कोई भी एक प्रॉपर्टी लेवल के नीचे है, बहुत सारे हाउस होल्ड ऐसे भी है हमारे देश पे जिन लोगों के पास 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है. राइट, सो हमारे पास तो एटलीस्ट खाना है, टचवुड. तो हम लोग ऐसी सोसाइटी पे रिफॉर्मेशन आना चाहते हैं जिसमें सबको दो टाइम का खाना मिले. तो इसको, ये टारगेट को अचीव करने के लिए सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी इज द बेस्ट एप्लीकेशंस. सो उसलिए बहुत सारे फिलोसॉफिस्ट आल्सो रिकमेंड कर रहे हैं सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी इज द बेस्ट ऑप्शंस टू मीट द सस्टेनेबिलिटी गोल. मीन सस्टेनेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन करना. राइट, सो सस्टेनेबिलिटी कम्स अंडर द सस्टेनेबल लिवलीहुड आल्सो. मींस आपको जो, हम लोग को जो रहना है, हम लोग को एक साथ मिलकर रहना है, एक साथ सबको एक काम करना है. मतलब जितना भी आपका हम लोग का 2 टाइम का खाना है सबको मिलना चाहिए. तो जितना भी रिसोर्सेस है हम लोग को हर टाइप का रिसोर्सेस, हर टाइप का एप्लीकेशन हम लोग को यूज करना चाहिए. उसमें से सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी इज द गुड एप्लीकेशन टू मीट ऑल दोज नीड्स. ओके, चाहिए. हाँ, तो इसमें जो एप्लीकेशंस हम लोग, मैंने बताया आप पिछले स्लाइड पे, अभी हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल क्या है. सो इफ ए एग्रीकल्चर लैंड टू बी कल्टिवेटेड इन 15 राइट, इट कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू, जो आपको बोला मैंने कि एक जो एग्रीकल्चर लैंड है उस एग्रीकल्चर लैंड को डिवाइड किया गया है एज पर द नीड. ओके, सो सपोज 15 राई का एक एग्रीकल्चर लैंड है आपके पास, उसको आपने डिवाइड किया 5 राई फॉर राइस फील्ड, 5 राई फॉर फील्ड क्रॉप्स,
3 rye for a pond and 2 rye for accommodations and other purposes. Suppose आपके पास 15 rye का एग्रीकल्चर लैंड है और आपके पड़ोसी के पास कोई भी लैंड नहीं है, ठीक है, तो उनको डेली बेसिस पे खाना खाने के लिए या फिर उसके पास बहुत कम एग्रीकल्चर लैंड है, कम कैपेसिटी का एग्रीकल्चर लैंड है, तो उनको क्या करना है, सपोज उनको भी राइस खाना है और आपको भी राइस खाना है, तो आप दोनों का मिल के आपको आप देखा कि 5 राई पे आप दोनों का, जस्ट एग्जांपल, 5 राई पे आप दोनों का मंथली का राइस का मीट हो जाता है फैमिली का। तो आपने क्या किया, आपका जो 15 राई का ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है उसको डिवाइड पे एक स्लाइड पे एक एक सेपर एक 15 राई का एक ब्लॉक में आपने 5 राई का राइस फील्ड बनाया। तो सपोज आप मान लो कि ऐसे करके 15 राई का जो कल्टीवेटेड लैंड है उसको आपने डिवाइड किया हर एक इसमें। अभी आप अब ऐड करोगे, 5 राई राइस हो गया, 5 राई फील्ड क्रॉप्स हो गया, 3 राई पॉन्ड हो गया एंड 2 राई एकोमोडेशन हो गया, टोटल 15 राई। एंड जो आपने टोटल एग्रीकल्चर लैंड को डिवाइड किया एज पर नीड बेसिस, मतलब आपको जितना रिक्वायरमेंट है मंथली बेसिस पे उतना ही आपने एग्रीकल्चर लैंड को यूज किया। सपोज ये 5 5 10 ये जो आपका है, सपोज 1 और 2 वाला जो पॉइंट है, 5 राई फॉर राइस एंड 5 राई फॉर फील्ड क्रॉप, सपोज ये जो 10 का जो अपने रिक्वायरमेंट है, सपोज ये आपने आपके लिए बनाया, और जो 5 ये 3 राई फॉर ए पॉन्ड एंड 2 राई फॉर एकोमोडेशन जो है वो आपके पड़ोसी के लिए बनाया। सपोज पड़ोसी के पास आपका ये पॉन्ड एंड एकोमोडेशन नहीं है, तो उसको देने के लिए आपने 5 बाकी 5 एरिया पे आपने पॉन्ड एंड एकोमोडेशंस बनाया। तो ये आपका ये इस टाइप का फिलोसॉफिकल माइंडसेट फिलोसोफर्स अभी एग्जाम्पल के हिसाब से सोसाइटी को प्रेजेंट कर रहा है, दैट दिस इज द एग्जाम्पल फॉर सफिशियंसी इकोनॉमी पॉलिसी। तो और यही प्रिंसिपल्स के आधार पे थाईलैंड का जितना भी एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशंस है, जितना भी सोसाइटी रिफॉर्मेशंस है, वो सब अभी इसी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हो रहा है। एंड उस पे थाईलैंड का भी बहुत, थाईलैंड गवर्नमेंट, थाईलैंड पॉलिसी मेकर्स का भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है एंड वो अच्छा है सोसाइटी के लिए एंड कम्युनिटी के लिए। ओके, थाईलैंड। ओके, सो व्हाई वी नीड टू अडॉप्ट सफिशिएंसी इकोनॉमी इन आवर डेली लाइफ। सो सफिशिएंसी इकोनॉमी हम लोग को डेली लाइफ में क्यों चाहिए? टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज ऑब्जेक्टिव्स, communities are as responsible as industries, right? सो हम लोग जब भी कभी भी क्लाइमेट चेंज होता है या फिर ग्लोबल वार्मिंग होता है, ऑलवेज इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं हम लोग, खुद का जो गलती है वो कभी नहीं देखते हैं, राइट? सो हम लोग का जो डेली बेसिस पे डेली रूटीन्स है, जो हम लोग का डेली हम लोग करते हैं, उसमें से भी कितना क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट गिरता है या फिर ग्लोबल वार्मिंग होता है, वो हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग ऑलवेज ब्लेम करते हैं इंडस्ट्री को। सो दैट्स व्हाई communities are equally responsible as industries regarding the climate change. Sustainable living is very much important to become carbon neutral, right? So इस कंट्री को या फिर आपको आपका इस वर्ल्ड को, इस अर्थ को कार्बन न्यूट्रल करने के लिए सस्टेनेबल लिविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Okay, so there is many measures we can take in our daily life like green transportations, recycling, reusing, reducing. Among them there is in one more measures we generally avoid, that is a sufficiency economy, right? जो मैंने आपको पहले ही बताया, सस्टेनेबल लिविंग के लिए बहुत सारे हम लोग ने मेजर्स करते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ने अभी स्टेप्स ले रहा है कि सस्टेनेबल लिविंग के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के जैसा स्टेट्स में ऐसा भी है कि आपका रिसाइकलिंग होता है प्रॉपर्ली, रिड्यूसिंग होता है, आपका जो वेस्ट है वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, एवरी हाउस होल्ड, जो भी सोसाइटीज है, जितना भी बड़े से बड़ा सोसाइटी या छोटे से छोटा सोसाइटी को हैव टू मेंटेन ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट सेपरेट करके मेंटेन करना चाहिए। ओके, सो म्यूनिसिपैलिटी जब भी लेने आते हैं डेली बेसिस पे डस्टबिन या फिर गार्बेजेस, उन लोग ने देख लेते हैं कि कौन सा वेट वेस्ट है, कौन सा ड्राई वेस्ट है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स लिया जाता है, बट एक मेजर्स अभी तक हम लोग का इंडिया पे भी उतना नहीं देखा गया है, दैट इज सफिशिएंसी इकोनॉमी पॉलिसी। दैट इज ऑल्सो ए मेजर्स टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, so communities are normally facing questions of sustainability while managing natural resources. Sufficiency economy policy is an example of merging adaptations measures within the sustainable development. Okay, so ये बोला जा रहा है कि ACP जो है सफिशिएंसी इकोनॉमी पॉलिसी, ये
बहुत सारी कम्युनिटीज को अभी धीरे धीरे लेके आना पड़ेगा। दैट इज ए मर्जिंग बिटवीन द एडेप्टेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मींस हम लोग डेली बेसिस पे जो यूज करते हैं दैट इज कम्स अंडर द एडेप्टेशन, राइट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग को मेजर्स चाहिए दैट इज सफिशिएंसी इकोनॉमी। ये दोनों को हम लोग मार्च करेंगे तब जाके एक सोसाइटी फॉर्म होगा जो प्रॉपर सोसाइटी है, एफिशिएंट सोसाइटी है, जो सस्टेनेबल सोसाइटी है। ओके। Sufficiency economy philosophy emphasizes strengthening self-sustained livelihoods through consuming, sharing, exchanging and selling products. Means कोई भी community sufficiency economy policy को properly develop किया, properly implement किया, so they are self-sustained livelihood. Means उनको किसी के ऊपर depend नहीं रहना पड़ेगा। हमारे गांव पे क्या है, हम लोग अभी जब सिटीज पे रहते हैं, हम लोग अभी खेती बाड़ी नहीं करते, राइट। हम लोग डिपेंड्स रहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर। हम लोग को दुकान से खरीदना पड़ता है, ये पड़ता है, राइट। जो खेती करते हैं, जो हम लोग के फ्रेंड्स है जो खेती करते हैं, वो खेती करने के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी करते हैं। उन लोग कंज्यूम भी करते हैं, एज पर दियर जो भी डिमांड है, जो भी उस हिसाब से कंज्यूम करते हैं, या फिर जो भी कंज्यूम करते हैं वो उस हिसाब से डिमांड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो एक्सचेंज करते हैं, सेलिंग करते हैं। ये प्रॉपर जो एंटायर साइकिल्स है, ये प्रॉपर जो प्रोसेस है, दैट्स कम्स अंडर द सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हम लोग तो अभी तक पता है हम लोग व्हाट इज सफिशिएंसी इकोनॉमी पॉलिसी, बट हम लोग प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सेटअप का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सफिशिएंसी इकोनॉमी पॉलिसी पे 100% ट्रस्ट रखना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए कि हाँ मैं जितना कंज्यूम करूंगा उतना प्रोड्यूस करूंगा। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन द मॉडर्न एरा। ओके ओके, एक केस स्टडी है। केस स्टडी में ये बोला जा रहा है कि थाईलैंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप इन एसीपी sufficiency economy policy has inspired numerous projects. Thailand economy mostly followed ACP. They already implemented more than 30 plus projects and outcomes are superb. Means ये बोल रहा है कि sufficiency economy policy का बेस्ट एग्जांपल है थाईलैंड। थाईलैंड में क्या हुआ है कि जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्मेशंस आया है, जो भी सोसाइटिकल रिफॉर्मेशंस आए हैं, उसमें सफिशिएंसी इकोनॉमी पॉलिसी की इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से उन लोगों ने 30 प्लस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किया है, आउटकम्स भी बहुत अच्छे आया है। सो एसीपी से हम लोग का प्रोजेक्ट से क्या क्या अभी हम लोग दे सकते हैं, हम लोग हमारे कंट्री पे क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग अभी सफिशिएंसी इकोनॉमी पॉलिसी बहुत ही न्यू है इंडिया पे, राइट। तो उसके लिए हम लोग को एक लर्निंग सेंटर्स डेवलप करना चाहिए, हम लोग को एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस क्रिएट करना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर एरियाज में या फिर कौन से रीजन्स में या स्टेट्स में हम लोग सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। एक ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम लोग को इंप्लीमेंट करना चाहिए चीजें। कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स बनाना पड़ेगा। और सेकंड क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ एसीपी सस्टेनेबल कम्युनिटीज व्हिच सर्व्स एज रोल मॉडल एंड डेवलपमेंट। सो एक बार ट्रायल एंड एरर होने के बाद कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन पे उस पे जो भी बेनिफिट्स आए, उस बेनिफिट्स को बाकी अदर रीजन्स पे डिस्ट्रीब्यूट करो, सो दैट दे आर मोर एनकरेज, दे आर मोर अवेयर अबाउट दैट सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी एंड दे कैन वांटेड टू इंटरेस्ट they should grow their interest to implement the sufficiency economic policy properly. ओके, सो ये सब चीज, ये सब मेजर्स हम लोग को पॉलिसी मेकिंग के टाइम से ही बनाना पड़ेगा। ये जो भी हमारे डेली बेसिस का रूटीन्स है, जो भी हम लोग का डेली बेसिस का कंजम्पशंस है, उस कंजम्पशंस को प्रॉपर्ली ट्रैक करो। लाइक सपोज मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, जो दोज हु आर फिटनेस फ्रीक, those who are doing regular basis exercise, proper diet and all, so they know about their body, right। means आपको उतना ही खाना चाहिए, उतना ही कैलोरी, उतना ही प्रोटीन चाहिए जो आप बर्न कर सकते हो नेक्स्ट डे, राइट। तो फिटनेस फ्रीक जो लोग हैं उन लोग प्रॉपर ट्रैक करते हैं डाइट को, प्रॉपर डाइटिशियंस प्रॉपर्ली ट्रैक करते हैं। सेम लाइक सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी में जो भी आप कंज्यूम करोगे उतना ही प्रोड्यूस करो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा करते हैं तो हम लोग वेस्ट होता है उसको, राइट। तो ये प्रॉपर प्रिंसिपल्स को हम लोग को समझना पड़ेगा एंड उसको प्रॉपर्ली ट्रायल एंड एरर बेसिस पे इंप्लीमेंट करके चेक करना पड़ेगा। ओके ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक सफिशिएंसी इकोनॉमी पॉलिसी। सो आशा करता हूँ आप लोग सबको अच्छा लगा होगा सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी, और आप लोग ट्राई करो जितना हो सके सफिशिएंसी इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर स्टडी करने का, जितना हो सके आप लोग समझने का, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये दैट इज नॉट ओनली फाउंड इन द सिलेबस, राइट। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डेली लाइफ। मीन्स हम लोग जो भी डेली बेसिस पे काम करते हैं
ये हमारे लिए है, राइट, ये टॉपिक हमारे लिए है। जो भी कंज्यूम करते हैं हम लोग उतना ही प्रोड्यूस करना चाहिए। जो भी कंज्यूम कर रहा है उसमें जितना हो सके कम वेस्ट रहे, जितना भी वेस्ट जनरेशन कम कर पाए उतना अच्छा है। सपोज हम लोग को पता है हम लोग कितना चावल खाते हैं, राइट, उतना ही चावल अब बनाओ, ज्यादा वेस्ट मत करो। ये सब चीज हम लोग को डेली लाइफ पे बनाना पड़ेगा। यही सब चीज जितना हो सके हमको पता है कि इस टाइम पे हमको इतना ही चीजें खाना चाहिए या फिर इतना ही चीज करना चाहिए, तो उतना ही चीजें अब बनाओ सो दैट वो वेस्ट ना हो, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को समझना पड़ेगा। तो एंड ये सफिशिएंसी इकोनॉमी पॉलिसी आप लोग और ज्यादा स्टडी करो। वेबसाइट पे बहुत सारे रिसोर्सेस है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग स्टडी करो। कोई भी क्वेश्चन रहा हो या फिर आपको लगे कि ये न्यू आइडिया है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए या फिर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल को मीट करने के लिए, डेफिनेटली you can put those ideas into our comment box. We also learn from you. We also wanted to learn from your ideas. We want to also understand your ideas also. So ये था आज का टॉपिक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। एंड कोई भी क्वेश्चंस रहा हो या फिर कोई भी डाउट्स है आपको, यू फील फ्री टू कनेक्ट विथ अस एनी टाइम। विल कनेक्ट विथ यू शॉर्टली। ओके, थैंक यू सो मच।